Hello friends, now in today's class we are going to discuss the very important topic, that is equations of motion, as a subtopic of main topic. Where is the first chapter, that is motion. Now in last period we have discussed about uniform motion and non-uniform motion. Now what is the speciality in case of a non-uniform motion? In non-uniform motion there is the change in velocity. Either velocity decreases or increases. Now whenever there is the change in velocity, the concept of acceleration comes. है कि नहीं? Now if the velocity is changing with regular rate या constant rate, then the acceleration is said to be uniform. Now actually these equations of motion are nothing but these are the equations of an accelerated motion. When the body is having a body is moving with constant acceleration, then we can we can have the equations of motion representing that accelerated motion. Therefore these are the equations of an accelerated motion that we have to discuss now in today's topic. Now these equations are the very basic equations and can be utilized to solve the numerical examples in the topic of mechanics or in the topic of the motion. Okay, so now here we will study now in detail about this equations of motion. Now the points to be discussed in today's class, the points are: the first we have to discuss about the equations of motion. Second, we will see the numerical example just to clear the concept. Okay, now one by one we have to study equations of motion by graphical method. Here we have to prove this equation by graphical method. For that, here the velocity time graph of an object is shown here. Object is moving with uniform acceleration a, small a. This is the uniform acceleration. Now this is the velocity time graph. On vertical axis velocity is there, on horizontal axis time is there. Velocity is there in meter per second, time is there in second. Okay. Now this is 0, this is t. Therefore time here t equal to 0, t equal to t. See here, this point is u and this point is v here. Okay. That means this is the velocity u and after some time the velocity become v. Now the object start here t equal to 0, that is the starting time. When t equal to 0, object is having initially some velocity. जब t equal to 0 तो ऑलरेडी वहां पे ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी है. जैसा कि सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर या 30 मीटर पर सेकंड and then continuously its velocity is increasing. Then that 30 meter per second now is its initial velocity, which is denoted by this letter small u. Therefore u is initial velocity. Now velocity is increasing with constant rate and finally when t equal to t it becomes v. When it becomes v, then this v is known as final velocity. Okay, therefore ये यहाँ से यहाँ तक का यदि डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस u होगा. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की बात करेंगे डिस्टेंस v होगा. यहाँ से यहाँ तक यदि डिस्टेंस की बात करेंगे t होगा. और ये यदि हमको डिस्टेंस लेना है bd, तो एक्चुअली देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया है v, ये डिस्टेंस कितना हो गया है u. देयरफॉर ये डिस्टेंस यदि निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, v माइनस u मतलब bc माइनस bd. बराबर है कि नहीं? देयरफॉर यहाँ पे v माइनस u यहाँ पे दिया है. बराबर है. नाउ ये जो शेडेड रीजन है, ये जैसे कि यहाँ पे आपको दो फिगर मिल रही है. क्या है ये? दिस इज द रेक्टेंगल, अनदर इज ट्रायंगल. नाउ दिस शेडेड रीजन इज नथिंग बट दिस इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्योंकि एक्चुअली ग्राफ कौन सा है? AB. इस सेगमेंट AB इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और ये जो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल जो दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है क्या कि वेलोसिटी द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, that concept here we have to utilize. Therefore now here these two figures, one is rectangle, another is triangle, here is shaded region is shown. ठीक है. Now one by one here velocity changes from u to v in time t. जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, the velocity is changing from u to v in time t. Surely u is initial velocity, v is final velocity. When t equal to t, final velocity. When t equal to 0, initial velocity. Okay.
now we have to see for the first equation, that is called as the equation for velocity time relation, or obviously generally it is known as first equation of motion. इसको हमेशा first equation of motion कहते हैं, equation for velocity time relation, because it is a relation between these two quantity, velocity and time. Therefore this is known as velocity time relation, लेकिन बहुत जनरली इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं. ओके, तो वन बाय वन नाउ वी विल सी. अभी थोड़ा फिगर की तरफ देखो, और देखो हमको क्या दिखता है फ्रॉम फिगर, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी सी. बी सी इक्वल टू व्हाट, वी. अभी मैंने बताया दिस बी डी वैसा का वैसा ही रखो, बी डी. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी सी. डी सी ये कौन सा, ये अंतर वी यू है और ये अंतर वी है, इसीलिए हमने देयरफॉर बी डी के लिए हमने इक्वेशन लिखा, देयरफॉर बी डी इक्वल टू वी माइनस यू होगा. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. अभी थोड़ा ग्राफ की तरफ देखेंगे हम लोग. एक्चुअली एक्सेलरेशन के लिए हमको फार्मूला मालूम है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि फार्मूला है ना, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. व्हाट इज दिस वी माइनस यू, इट इज चेंज इन वेलोसिटी. देखो वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u, तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, u टू v, तो हमको डिफरेंस लेना पड़ेगा v माइनस यू. देयरफॉर ये v माइनस यू जो डिस्टेंस हमको दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, यदि हमने उसकी वैल्यू यदि रखते हैं, जैसे अभी ग्राफ का जिक्र हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी इट इज इक्वल टू बी डी. अभी मैंने बताया, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू और दैट इज बी डी अपॉन ए डी, दिस डिस्टेंस ए डी, व्हिच इज इक्वल टू नाउ बी डी. This is BD upon this T. ठीक है, एंड फ्रॉम दैट हियर नाउ वी विल गेट इक्वेशन. देयरफॉर BD इज इक्वल टू T इधर आएगा, तो क्या मिलेगा हमको, BD इज इक्वल टू A इंटू टी. देयरफॉर BD इक्वल टू A इंटू टी. ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वी हैव टू पुट द वैल्यू. सी व्हाट इज इक्वेशन, BD इक्वल टू V माइनस यू. एक्चुअली BD इज इक्वल टू AT. देयरफॉर यहाँ जो इक्वेशन 1 में BD के अलावा जगह क्या रखो, AT रखो, तो हमको मिलेगा AT इक्वल टू V माइनस यू. ठीक है, उससे हम एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला भी लिख सकते हैं. फिर A इज इक्वल टू ये T इधर आएगा, तो V माइनस यू अपॉन टी. और इससे हम इक्वेशन ये भी लिख सकते कैसा, V इक्वल टू यू प्लस AT. ये u इधर लेकर आओ, तो हमको क्या मिलेगा, u इधर ले जाएगा, तो V इक्वल टू यू प्लस AT. बराबर है कि नहीं. देयरफॉर माइनस यू है इधर, प्लस ये हो जाएगा u प्लस AT. देयरफॉर या इससे भी ले लो, बराबर है कि नहीं, ये इधर चलाएगा फिर ये इधर चलाएगा. देयरफॉर v इक्वल टू यू प्लस AT. नाउ दिस इज नथिंग बट एक्चुअली दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन. एक्चुअली दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन which is also known as first equation of motion. इसको first equation of motion कहते हैं. Now why it is called as the velocity time relation. See what is u, u is the initial velocity when t equal to 0. वहाँ एक वेलोसिटी हो गया और वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगी, मतलब वो वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट. जैसे कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर किसी ऑब्जेक्ट की, और लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वो स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी रहेगी हमेशा के लिए, 30 किलोमीटर पर आवर. देयरफॉर v u इज नाउ कांस्टेंट. ये ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने पहले बोला है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसका मतलब u कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. दैट मीन्स v की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे t डिसाइड करता है. जैसा जैसा t बदलेगा, t बढ़ेगा, उसी अनुसार v क्या होगा, चेंज होगा, v बढ़ेगा. मतलब वैल्यू ऑफ v डिपेंड्स ऑन t. या कैन वी से दैट हियर देयर इज द रिलेशन बिटवीन v एंड t. That means there is a relation between velocity and time. That is the reason why this relation is now referred as velocity time relation and also called as first equation of motion. इसको first equation of motion भी कहते हैं. Okay. Now next we have to see equation for position time relation या फिर second equation of motion और second equation of motion. ठीक है, that is that this is the relation between position and time, that is the distance time relation. ठीक है. Now to prove this relation here again we are using the same graph here, same graph is there. ठीक है. Now यहाँ पे हमको कंसेप्ट यूज करना है, यहाँ पे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल. अभी फिर से हम वहां पे जाएंगे, क्योंकि हम ये क्यों कंसिडर करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक कंसेप्ट देखा, व्हाट, area under velocity time graph is always equal to distance covered by the object. और एक बार रिकॉल करेंगे, दिस इज AB,
इसके अंडर का एरिया करना है तो क्या करना है, बी से यहाँ परपेंडिकुलर डालो और यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, मतलब ये जो पूरा का पूरा आएगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज एरिया अंडर दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Yes or no? Now we are getting two figures now. One is this rectangle, another is this triangle. ठीक है, and therefore now see this is the rectangle and this is triangle. Then this shaded area of rectangle plus area of triangle, totally it gives the area under velocity time graph. Okay, therefore here the area under velocity time graph equal to area of rectangle OADC plus area of triangle ABD. ठीक है, अब हम सिंपली फार्मूला यूटिलाइज करेंगे. therefore area is equal to OA into OC. this OA into OC, what is the formula for the area of rectangle? you should know, है कि नहीं? length into breadth, बराबर है कि नहीं? AO into OC या OC into OA, कोई भी पहले लिखो. therefore OA plus half AD into BD. what is half? what is the area of triangle? half of base into height. what is this AD? AD is base and this is the height, BD is the height, 1 by 2. therefore 1 by 2 AD into BD. अब पुट द वैल्यू OA इक्वल टू U. ये जो OA है ये U है, पहले मैंने बताया. दिस डिस्टेंस इज U, दिस डिस्टेंस इज V और दिस डिस्टेंस इज V माइनस U. ठीक है, therefore OA OC it is T plus half of AD is again T, this T into BD इक्वल टू हमने AT रखा है. अब वहाँ का पहले इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा सा याद करो, वेयर BD इक्वल टू AT, हमने ऑलरेडी इसको प्रूव किया था, बराबर है कि नहीं? तो दिस BD की वैल्यू है ये किसके बराबर होती है? AT के बराबर होती है. और इसीलिए यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? एरिया इज इक्वल टू U इंटू टी, UT प्लस हाफ ऑफ ये T इंटू टी बन जाएगा T स्क्वायर और A, देयरफॉर इट इज AT स्क्वायर. नाउ कंक्लूजन हमको क्या फॉलो करना है हियर? area under velocity time graph is always equal to the distance traveled by an object, बराबर कि नहीं? and therefore this is area. now according to this conclusion this area is nothing but it is now a distance. therefore S equal to UT plus half AT square. UT plus half AT square. okay, and this is nothing but actually what? दिस इज पोजिशन टाइम रिलेशन, जो हम पढ़ने जा रहे थे. इट इज पोजिशन टाइम रिलेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. व्हाई इट इज कॉल्ड द पोजिशन टाइम रिलेशन? नाउ सी वंस अगेन, यू ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी कैसी रहेंगी? कांस्टेंट. देन 1/2 कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, देयरफॉर यहाँ पे टी है, मतलब डायरेक्टली यस किसके अनुसार बदलेगा? टी के अनुसार. टी जैसा जैसा टी बढ़ेगा वैसा वैसा यस की वैल्यू रहेगी, बराबर कि नहीं? देयरफॉर यस इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर. दैट मीन्स दिस यस इज डिपेंड्स ऑन द टी. यस मीन्स डिस्टेंस मीन्स पोजिशन, है कि नहीं? देयरफॉर इट शुड बी ए डिस्टेंस टाइम या फिर पोजिशन टाइम रिलेशन. हमेशा कहते हैं पोजिशन टाइम बिकॉज पोजिशन गिव्स द डिस्टेंस देन covered by the object, बराबर है कि नहीं? therefore position time relation or second equation of motion. so always remember this relation as now second equation of motion. okay, now we are going to see now third equation of motion which is actually position velocity relation. मतलब it should be a relation between position and velocity या distance and velocity. ठीक है, for that here once again here we have to see the same graph देख रहे हैं आप? सी सेम पोजिशन टाइम ग्राफ. नाउ once again this is area under velocity time graph. here one is rectangle, another is triangle. now instead of rectangle and triangle we will consider this total figure. ये total figure हमको consider करनी है. ठीक है, जब total figure consider करेंगे तो हमको पता चलेगा what is that? that is a trapezium. वो जो फिगर थे ना rectangle plus triangle, that is trapezium. therefore from graph the distance traveled by the object is equal to the area of trapezium. already हमने देखा, क्योंकि what is the area of trapezium now? it is total area under velocity time graph. and therefore now distance के लिए हम yes यूज करें area of trapezium OABC. अब फार्मूला यूज करें हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ये हमको मालूम होना चाहिए, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं. व्हाट इज दैट? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ टू पैरेलल साइड 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट. ये है उसका फार्मूला. ठीक है, याद आता है? 1/2 A प्लस बी इंटू एच, है कि नहीं यार?
बहुत सारे बच्चे ऐसा लिखते हैं कि 1/2 H1 प्लस H2 सॉरी A1 प्लस A2 इंटू H, तो ये OC जो है हाइट है और ये OA BC. व्हाट इज दिस? OA एंड BC, these are the two parallel sides of a trapezium. Two parallel side of a trapezium. See OA और OB, ये देखो ये OA और ये BC है कि नहीं? These are the two parallel side. और हाइट मतलब हाइट टैब लेने के लिए OC ले लो, AD ले लो, ये सारा है कि नहीं? AD ले लो या OC ले लो, ये क्या हाइट है और ये दो क्या है? पैरेलल. Therefore OA और BC, these are the two parallel sides. Okay, and therefore now in formula OA plus BC, sum of two parallel side divided by 2 into OC. OC is the height. Put the value. What is OA? U, BC V, the figure, और OC T डिवाइडेड बाय 2. आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है कि नहीं? एंड देयरफॉर नाउ एक्चुअली इसमें T है क्योंकि हमको देखना है पोजीशन वेलोसिटी, मतलब हमको पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन लेना है. लेकिन यहाँ पे जो T है ना, तो T को हमको एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट करना है मतलब उसको दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करें मालूम है? पहले वाला इक्वेशन यूज करें हम. हमारा व्हाट इज द पहले वाला इक्वेशन मालूम है कि नहीं? V इक्वल टू यू प्लस ए टी, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर उस पर से T की वैल्यू यदि निकालेंगे ना तो हमको इस प्रकार मिलेगा, क्योंकि U इधर लेकर आपको मिलेगा V माइनस यू और ये लाएंगे इधर तो ये मिलेगा A. इधर पर T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1. ये वैल्यू वहाँ पे पुट करो, ठीक है? जब आप वैल्यू पुट करोगे तो हमको क्या मिलेगा? S इक्वल टू V प्लस यू इंटू T. T के अलावा हम क्या रखेंगे? V माइनस यू अपॉन A, और ये ऑलरेडी 2 यहाँ पे है, ठीक है? अभी हमको दिस इज V प्लस यू V माइनस यू, ये देखो क्या है? V प्लस यू V माइनस यू, A प्लस B A माइनस B. दिस इज नथिंग बट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. आइडेंटिटी हमको मालूम होनी चाहिए कि नहीं? A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. A के जगह है V, B के जगह U. Therefore it is now V square minus U square upon 2A. Therefore S is equal to, and now finally 2AS equal to V square minus U square. 2AS equal to V square minus U square. And now this is nothing but this is equation for position velocity, and it is known as third equation of equation, है कि नहीं? Now we know that ये देखो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यू स्क्वायर कांस्टेंट है. ये कांस्टेंट है मतलब ये किसके किसके बीच में रिलेशन है? यस और वी के बीच में. यस मतलब डिस्टेंस, एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन. देयरफॉर इट इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इसलिए इसको पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन का है. और ऑफनली हियर दिस रिलेशन इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, नाउ दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस व्हिच आर जनरली नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशंस. Equations of motion, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन once again we can recall V equal to U plus AT. सेकंड इक्वेशन S equal to UT plus half AT square. और थर्ड इक्वेशन 2AS equal to V square minus U square. Okay, now we are going to discuss example on this. A train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, मतलब constant. Find the acceleration and the distance traveled by the train. तो ये हमको example है, and we have to utilize the equations, the concept of equation which we have learned just now. Okay, now how to solve this? पहले तो हम देखेंगे हमको क्या क्या दिया है. Here u equal to 0 मीटर पर सेकंड. ये कहाँ? 0 तो कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे एक अंडरलाइन किया. व्हाट? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट? रेस्ट मतलब ट्रेन खड़ी है और वहां से शुरू होगी, मतलब उसकी शुरू की वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है? देयरफॉर u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर. 72 है कि नहीं? 72 किलोमीटर. कब? 5 मिनट के बाद. It attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. इसका मतलब v क्या है? v equal to 72 km per hour. It is which velocity now? Final velocity. लेकिन kilometer per hour is not a SI unit. Therefore now we have to put this quantity in SI unit.
क्या करना है, किलोमीटर पर आवर के लिए 5/18 से क्या करो, डिवाइड करो। तो ये देखो 4 का जाता है भाग और 4 × 5 कितने हो रहे, 20 हो रहे, एंड देयरफॉर फाइनली इट बिकम्स नाउ 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एसआई में चाहिए। तो u होगा हमारा 0 मीटर पर सेकंड, ये होगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या दिया है, t दिया है, हाउ मच, 5 मिनट्स, लेकिन मिनट इज नॉट द एसआई, देयरफॉर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड, देयरफॉर नाउ इट बिकम्स 300 seconds. Okay, now one by one, first we have to calculate the acceleration. To find the acceleration, which equation we have to use, यहाँ पे कहा using first equation. Why first equation? It is asked to calculate acceleration. हमको मालूम क्या है, हमको u मालूम है, हमको v मालूम है, हमको t मालूम है। हमको तीनों इक्वेशन में से देखना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन चलेगा। v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको u मालूम है, v मालूम है, t मालूम है और ये चाहिए। तो ये 4 क्वांटिटी में से 3 मालूम है, एक नहीं पता, उसके लिए हियर वी हैव टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमको u दिया है, v दिया है, t दिया है, ये we have to calculate, and therefore now from this a is equal to v minus u upon t, already we know this formula for the acceleration, है कि नहीं, v, u and t is given, therefore put the value and have the answer. v equal to how much, ये 20 मीटर पर सेकंड माइनस 0/300, दैट इज 20/300, ठीक है। ये चला गया और ये 15 का भाग गया तो 1/15, और इसको यदि हमने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, 1/15, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 0.0666 आएगा, ठीक है। क्योंकि देने के लिए क्या बात, देखो यहाँ पे भाग नहीं जाता, इसलिए मैंने पॉइंट का भाग दिया, फिर 10 हो गए, फिर 15 से और 10 को भाग नहीं जाता और 0 ले लिया, फिर कितने हो गए 100, फिर 15 × 6 90 होते हैं, ठीक है। 100 में से 19 गए कितने, 10, और 0 ले लिया और कितने हो गए 100, फिर और किसका डिवीजन जाएगा 6 और इसके वजह से 666 आएगा, बराबर है कि नहीं, तब 0.0666, ठीक है। ये इसको यदि हमको हटाना है तो उसके पहले का डिजिट हम क्या करें, इसको भी हटाना है तो इसके पहले का डिजिट 1 से क्या करते, बढ़ाते हैं, और इसलिए फाइनल नाउ इट बिकम्स a इक्वल टू 0.07 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। नाउ सेकंड वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन। नाउ हमको अभी एक्सेलरेशन भी मालूम हो गया, u भी मालूम हो गया, v भी मालूम हो गया, t भी मालूम हो गया, ठीक है। तो वी कैन यूज हियर थर्ड इक्वेशन एज वेल एज द सेकंड इक्वेशन आल्सो। हम सेकंड इक्वेशन भी यूज करते क्योंकि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ इट, क्योंकि अभी आपको एक्सेलरेशन पता हो गया, या थर्ड इक्वेशन है कि नहीं, यूज कर सकते, जो इजी होता है उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो थर्ड इक्वेशन यहाँ पे यूज करना इजी है, देयरफॉर व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, पुट द वैल्यू, देयरफॉर हमको s निकालना है, 2a इधर लेकर आएंगे हम लोग, देयरफॉर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, व्हाट इज v इज 20, उसका स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 0, 2 × a, व्हाट इज a 1/15, मैंने a 1/15 लिया, ये नहीं, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, बराबर है कि नहीं, तो 1/15 कैलकुलेशन के लिए हम यूज करेंगे। तो देखो ये क्या होगा, 20 माइनस 0 20 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 15, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या किया, 20 का स्क्वायर कितना हो रहा 400, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 200 और ये ऊपर गया 50, ये दी जाएगा तो दिस 200 × 15, एंड फाइनली नाउ इट बिकम्स 3000 मीटर which is equal to 3 kilometer. We can solve this thing, ठीक है। This distance is now 3 kilometer, and therefore this is the answer. Therefore now to solve these equations we have used first equation and then third equation. यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन भी यूज करके देखो, यू कैन हैव द सेम आंसर, दैट इज द 3 किलोमीटर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ दैट इक्वेशंस ऑफ मोशन वी हैव सीन, ठीक है। तो the concept of equations of motions are very very important because these equations are useful to solve the numerical examples. Okay, so once again I am recalling the first equation, that is known as velocity time relation, v equal to u plus at, ठीक है। Then second equation of motion is also known as position time relation, ठीक है। What is that?
S equal to ut plus half, yeah, 1 by 2 at square. Okay, and third equation is there. What is the name? It is given as position velocity relation. It is a position velocity relation. Now it is what? 2as equal to v square minus u square. Okay, so the work for you is that just read the concept carefully from the book, make a note and solve example based on this equation solution. Okay, thank you.